Hi students, welcome back to online IT class. We are on chapter number 1, advanced web designing, and we are learning about HTML forms. And in today's lecture, we are going to learn about how to create drop-down list box, and we are going to learn about how to create multi-line text boxes, that is called text area. सो योर मेन टॉपिक्स आर वैसे एक्शन एट्रीब्यूट, फिर हम इनपुट टैग के कुछ बचे हुए एट्रीब्यूट्स देखेंगे. उसके बाद विल लर्न हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. फिर हम सेलेक्ट टैग के एट्रीब्यूट्स देखेंगे. फिर टेक्स्ट एरिया टैग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे. और फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट एरिया. So let's begin. So in our last video we have seen one form example number 1 in which we have created two text box which was an input required for first name last name. Then we have created two radio buttons for gender. Then we have created one hobbies using checkboxes. So we have provided three options for hobbies, then and submit button and reset buttons were created. So this was the output which you have received. Students who have coming for first time on this video, please copy this HTML code on your PC and then we'll practice on this only. Okay. So let's move further. So today first thing we will learn about this action attribute. Now as I've told, forms are used to collect data from the visitors. So after clicking submit button, your form data goes to the web server. So this action attribute is used to specify where the form data is to be sent to the server. So this will contain the URL, that is uniform resource locator, the complete address of that server side script file which is going to handle your data. So this is about action attribute. So in action attribute you have to write action equal to and the complete path of that server file which will handle your data, which will collect the data. So what I've done, I have my personal website exa.in. In that I have created one server side page using PHP, and that page name is response.php. So what you have to do, you have to add this action attribute in form tag. Say action equal to the domain name, complete path, https://exa.in/response.php. So this response.php contains the script made in PHP which will collect the form data and will display back the contents which it has received. So this action and this exa.in response.php you can use in any form. Only it requires that your form is properly designed and you have given name to every form element. So let's see. We'll go back to our form1.html. So this is our form1.html output which we have created in our previous video lecture. So I'll go to the notepad and here what I was going to add, I will add this action equal to https exa.in response.php attribute. Okay. So where I'm adding this in the opening tag of the form. So we'll save this and we'll reload the page, and now your submit button will work today. So again I will enter the data. I'll choose the gender, I'll choose 2 hobbies. Now I'll click on submit button. So now what will happen, the form data will be sent to the server. So which domain, exa.in, in that which file is going to handle, that is response.php. So let's see what response we get. I click on submit button. So data has been sent and it has gone to exa.in, and from there we got a response. Thank you for submitting form. So you can see the form element name and its value. So this is a small script which I have created on this, which will just collect the form element name and value. Okay, so your form is perfect. So using this action attribute and my site name, you can confirm that your form is working properly as desired. So you can see all the data has gone with the URL. So this is our action attribute URL, and
the entire form data has been added here. Okay, this is the default method of sending the form data to the server, and this method is called get method. So there is one more method called post method. We can change it so it will be not visible in the URL. So you can say post method. So method equal to post, what will happen? It will not send the data through URL, but it will send through the HTTP headers where the your browser and the server talks through HTTP headers, that is through the protocols. So again we'll load the form, and now again we'll send the same data. Now let's see, we click on submit button. तो अभी इसका एड्रेस बार में ये पाथ देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमारे सर्वर पेज का URL आया, उस पर डेटा नहीं दिख रहा है. तो when you change method equal to post, all your data will be sent to the server hidden. So you cannot make out through that URL what data has been sent. So it is done to protect your data from the hackers. So this is clear how to use the action attribute. Now we'll move further. Now we'll talk about other attributes of input tag. In this we'll see what is required, what is read only, disabled, and autofocus. So first we'll see what is required. Now what it does, it tells that an input field is required before submitting the form. It means when you submit the form, certain fields you want that user should compulsory fill it. For those fields you will use this required attribute. यानी जो फॉर्म में कुछ fields है जहाँ यूज़र को फोर्सिबली डेटा एंट्री करने वाले हो, बोलने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिखना है. तो रिक्वायर्ड इज़ अ बुलियन एट्रीब्यूट, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, जस्ट आप रिक्वायर्ड लिख दीजिए. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया, फर्स्ट नेम के इनपुट टैग में. फिर मैं जेंडर में रिक्वायर्ड लिख देता हूँ ताकि वो जेंडर भी चूज़ करे. देखिए यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिख दिया. और हॉबीज़ इफ़ ही वांट्स ही कैन चूज़, एल्स नॉट रिक्वायर्ड. सो हमने फर्स्ट नेम और जेंडर को कंपलसरी कर दिया. तो सेव किया मैंने. अगेन विल रीलोड योर वेब पेज. सो व्हाट विल डू नाउ, विल जस्ट एंटर योर लास्ट नेम and the hobbies and let's submit the form, see whether the form goes or not. So it's not going, it is saying please fill out this field. So we'll fill out this field, again we'll submit. Now it is saying please select one of these options. You have to choose this option, then only the form will get submitted. So required attribute is used to force the user to compulsory input certain attributes in the form. नेक्स्ट देखेंगे रीड ओनली एट्रीब्यूट. अभी रीड ओनली इनपुट फील्ड के लिए अप्लाई होता है, जैसे टेक्सचुअल, ईमेल, यूआरएल, सर्च और नंबर टाइप ऑफ इनपुट फील्ड्स के लिए. इससे क्या होता है कि उस फील्ड का डेटा हम लोग चेंज नहीं कर सकते. तो जो भी डिफ़ॉल्ट डेटा आपने दिया हुआ है वही रह जाएगा. जैसे एग्जांपल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो लास्ट नेम है उसको हम रीड ओनली बनाएंगे और उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे. डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट. तो वैल्यू में मैं यहाँ पे जोशी लिख देता हूँ. तो देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू जोशी, और इस इनपुट फील्ड को, टेक्स्ट बॉक्स को हमने रीड ओनली बनाया. तो सेव किया. नाउ वी रीलोड द पेज. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं जोशी एट्रीब्यूट आ गया, यहाँ पे जोशी वैल्यू आ गई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो मैं अभी ये नया नाम डालता हूँ. तो देखिए हम इस जोशी, इस लास्ट नेम को चेंज करने की कोशिश करेंगे. सो इट्स नॉट चेंजिंग, आई एम ट्राइंग टू इरेज इट ऑल्सो. इट वोंट चेंज बिकॉज नाउ दिस इनपुट फील्ड इज रीड ओनली. सबमिट द डेटा. So it has gone. So in this way we can make any input field read only so that the user cannot change that particular value. Then you have to provide also one default value for that.
तो ये पूरा हम निकाल देते हैं अभी फिलहाल। तो हम रिक्वायर्ड भी निकाल देते हैं, यहाँ से भी रिक्वायर्ड निकाल दिया। अगेन वी रीलोड द फॉर्म। तो देखिए अभी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट निकाल दिया, अभी मैं सिर्फ ये दो भेजने वाला। तो वेदर डेटा विल गो, इट विल गो, यस। तो देखिए फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डाला और जेंडर भी नहीं चूज़ किया, तभी भी फॉर्म चला गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डालना है, जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ के इनपुट फील्ड यूज़र ने कंपलसरी भरने ही है। सो दिस इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एंड रीड ओनली। नेक्स्ट है डिसेबल्ड एंड ऑटो फोकस। सो फर्स्ट हम लोग ऑटो फोकस देखेंगे। तो ऑटो फोकस का यूज़ होता है कि पेज लोड होते ही आपको कोई इनपुट फील्ड में फोकस लेके आना है, यानी आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाए या कंट्रोल वहाँ पहुँच जाए, उसके लिए ऑटो फोकस यूज़ होता है। जैसे अगर मुझे लगता है कि जैसे पेज लोड होता है तो लास्ट नेम पे ऑटो फोकस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑटो फोकस लिख दूंगा। ये भी एक बुलियन एट्रीब्यूट है। सो मैंने सिर्फ ऑटो फोकस लिखा, किसके लिए? लास्ट नेम के इनपुट फील्ड के लिए। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अगेन विल रीलोड द पेज। नाउ सी विल रीलोड, see what happens. So cursor automatically has come in the last name input field. तो यहाँ पे एक ब्लू बॉर्डर आ गया, यानी आपका कर्सर का माउस एरो का कंट्रोल सबसे पहले लास्ट नेम में चला गया। अभी मुझे लगता है कि अभी ये जेंडर में जाना चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ से मैं ऑटो फोकस निकाल के जेंडर में डाल दूँगा। देखिए जेंडर के रेडियो बटन में डाल दूँगा, ये यहाँ पे डाल दिया। फिर से मैंने फाइल को सेव किया and then I refresh. Now you can see a box has come for that male radio button option. So in this way you can make any of the input field autofocus, so that your on page load your mouse control directly goes there. Next है disabled. Now this is simple attribute. It is also a boolean attribute that will just disable the particular input field. जैसे मुझे हॉबीज़ नहीं चाहिए, हॉबीज़ में मुझे सर्फिंग हॉबीज़ नहीं चाहिए, ये मुझे डिसेबल करना है, तो आई विल जस्ट राइट डिसेबल्ड। सो कोई भी इनपुट फील्ड अगर डिसेबल्ड है तो यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ना ही वो वैल्यू, उस फील्ड की वैल्यू फॉर्म को सबमिट होगी। तो फिर से मैं रिफ्रेश किया, put the details. Now you can see cannot choose this surfing checkbox. Why? It has been disabled. Nor it is sent to the server. तो देखिए यहाँ पे सर्फिंग की वैल्यू नहीं आई। तो ये आपको सबको समझ में आ गया, हाउ टू यूज़ रिक्वायर्ड, व्हेन टू यूज़ रीड ओनली, डिसेबल्ड एंड ऑटो फोकस। सो अगर इनपुट फील्ड डिसेबल करना है, वो सर्वर को भेजा ही नहीं जाएगा, तो उसे डिसेबल करने का मतलब क्या है? नॉर्मली प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है कि सर्टन फॉर्म्स में आप कुछ डिटेल भर रहे हो, तो कुछ फील्ड्स स्टार्ट में डिसेबल्ड हो गए, लेकिन कुछ कंडीशंस आपके इनपुट के हिसाब से वो फील्ड ऑन हो सकते हैं, तभी ये यूज़ होता है डिसेबल्ड। नेक्स्ट विल सी अनदर एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर का यूज़ है कि यूज़र को इनपुट फील्ड में क्या वैल्यू डालना है उसके लिए आप हिंट दोगे एक, तो ये डिस्क्राइब करेगा कि व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी कम ऑन द इनपुट फील्ड। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा और ये डिस्क्रिप्शन इनपुट फील्ड के अंदर ही आएगा। तो लेट्स सी, हम लोग अभी जो फर्स्ट नेम है वहाँ पे एक प्लेस होल्डर डालेंगे। देखिए मैंने प्लेस होल्डर लिखा, इक्वल टू, मैं यहाँ डालूँगा एंटर योर फर्स्ट नेम ओनली। ये उसको हिंट दी गई, इस इनपुट फील्ड में, इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ फर्स्ट नेम ही डालना है, तो हम लोग प्लेस होल्डर इक्वल टू लिखेंगे। ओके, तो ये कहाँ पे आएगा? ये इसी बॉक्स में आएगा। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो देखो रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही आ गया एंटर योर फर्स्ट नेम ओनली इन ग्रे कलर। जैसे ही आप टाइप करना चालू करोगे ये निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ प्लेस होल्डर।
you have to just mention placeholder equal to and the string and the hint that you want to display in that input field. नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट. टाइटल भी हिंट देने के लिए यूज़ होता है, लेकिन टाइटल में जो लिखेंगे वो आएगा एज अ टूल टिप. टूल टिप क्या होता है? एरो के नीचे एक बॉक्स आ जाता है, पॉपअप बॉक्स, उसके अंदर टूल टिप नज़र आएगा. तो हम लोग अभी प्लेस होल्डर निकाल देते हैं, उसकी जगह लिखते हैं टाइटल. तो हमने टाइटल इक्वल टू में डाल दिया एंटर योर फर्स्ट नेम ओनली. तो देखिए चेंज मैंने क्या किया, टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स में एंटर योर फर्स्ट नेम ओनली. सो आई एम सेविंग दिस एंड वी विल रीलोड द पेज. मैंने रिफ्रेश किया, रीलोड. ना वो प्लेस होल्डर तो चला गया. अभी ये टूल टिप देखो कहाँ पे आएगा. जैसे मैं फर्स्ट नेम के इनपुट फील्ड में जाऊँगा तो ये देखो यहाँ एरो के नीचे आपका जो आई कर्सर है उसके नीचे टूल टिप के फॉर्म में आया एंटर योर फर्स्ट नेम ओनली. सो दोनों से हम लोग सजेशंस दे सकते हैं, प्लेस होल्डर से भी और टाइटल से भी. सो एज रिक्वायर्ड बाय यू, यू कैन यूज़ इट. जैसे रेडियो बटन है तो आप लोग टाइटल यूज़ करोगे, टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स है तो आप लोग प्लेस होल्डर यूज़ करोगे. नेक्स्ट कम टू पैटर्न. अभी एक पैटर्न एट्रीब्यूट भी एक रेस्ट्रिक्शंस डालने के लिए यूज़ होता है कि आप यूज़र को फोर्स करेंगे कि सर्टन वैल्यू इनपुट करे. जैसे मैंने हमारा टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट नेम के लिए, वहाँ पे कोई नंबर ना आ जाए, यूज़र न्यूमेरिक डेटा ना एंटर करे, यूज़र ने कोई सिंबल नहीं एंटर करना चाहिए नेम बॉक्स में. तो हम रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट से. तो पैटर्न एट्रीब्यूट को एक वैल्यू देनी पड़ती है, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन. तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर कुछ सिंबल्स और उसका जो लॉजिक है उसके हिसाब से एक स्ट्रिंग बनाई जाती है जो ब्राउज़र को इन्फॉर्म करेगी कि उस फील्ड में आपको क्या एंट्री करना है, रेस्ट्रिक्ट करेगी यूज़र को. सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी आप स्ट्रिंग डालोगे तो उसके हिसाब से ही इनपुट है कि नहीं वो चेक किया जाएगा, इनपुट की वैल्यू ऑन फॉर्म सबमिशन. सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको शॉर्ट में रेगेक्स बोलते हैं. इज़ अ पैटर्न डिस्क्राइबिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, एक छोटा सा पैटर्न. आपको इसके बारे में अगर डिटेल पता करना है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो W3 स्कूल्स के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल है, या फिर अब regular-expression.info में जाइए, वहाँ पे भी आपको ट्यूटोरियल दिखेगी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लास्ट नेम में एक रेगुलर एक्सप्रेशन डालेंगे. हम लोग लिखेंगे पैटर्न. मुझे चाहिए कि लास्ट नेम में यूज़र ने सिर्फ कैपिटल लेटर्स की एंट्री करनी चाहिए. तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन का स्ट्रिंग है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में A-Z, यानी A से लेकर Z कोई भी अल्फ़ाबेट चलेगा, और यहाँ एक स्टार डालेंगे यानी मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स. तो ये एक पैटर्न डाल दिया कि इस फील्ड में यानी लास्ट नेम के फील्ड में सिर्फ कैपिटल ही इनपुट होगा और दूसरा कोई भी नहीं. तो लेट्स सेव एंड विल रिफ्रेश द फॉर्म. सॉरी, समथिंग हैपेंड, वी हैव नॉट पुट डबल कोट्स. देखिए डबल कोट्स में मिस हो गया तो उसकी वजह से ये टैग क्लोज ही नहीं हुआ. तो ये सेव किया और अगेन वे रिफ्रेश. ओके, देखिए अभी फर्स्ट नेम में ये डाल रहा हूँ. अभी यहाँ पे मैं स्मॉल में डालूँगा जोशी, मेल, रीडिंग, लिसनिंग. तो लेट्स सबमिट. देखिए अभी यहाँ पे ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है. यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आया, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट. तो यहाँ पे जब तक आप अभी कैपिटल लेटर में नहीं डालोगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो अभी मैं कैपिटल डालता हूँ और साथ में एक नंबर भी बाय मिस्टेक डाल देता हूँ, अभी वो एक्सेप्ट करेगा. फिर से वही पूछेगा, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट. सो जब आप पैटर्न यूज़ करोगे तो साइड में आपको एक इंस्ट्रक्शन लाइन भी डालनी पड़ेगी विजिटर्स के लिए, यूज़र्स के लिए, कि इस बॉक्स में क्या डालना है, या आपको प्लेस होल्डर थ्रू इन्फॉर्म करना है, या टूल टिप से भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो. तो ये देखिए अभी मैं ये कैपिटल में डाल देता हूँ सिर्फ जोशी. तो ये हमने पैटर्न यूज़ किया था A-Z जो कैपिटल लेटर्स में था. अभी हम सबमिट करेंगे. तो ये सबमिट हो गया. ओके,
Go back. So in this way, we can specify pattern for all the text box, password box, email, URLs. Okay, we can specify what pattern of you want. तो you need to study regular expressions. तो इसके ट्यूटोरियल्स आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप पैटर्न्स कैसे डिस्क्राइब कैसे बना सकते हैं. जैसे आपको चाहिए कि 3 लेटर ही डालने हैं तो कैसे बनाएंगे, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स है उसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. या जैसे आप मोबाइल नंबर पूछ रहे हो तो आपको चाहिए कि सिर्फ नंबर से डाले 10 ही नंबर डाले तो उसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न है. So this is all about different attributes of input tag. We have seen required, read only, disabled, autofocus. ये एट्रीब्यूट आगे के सभी टैग्स में भी यूज़ हो गए. फिर प्लेस होल्डर देखा, टाइटल देखा, पैटर्न देखा. So next, our main task of today's lecture is how to create drop-down list box. So everyone must have seen what a drop-down list box looks like. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे सेलेक्ट मंथ दिया, या ये बॉक्स है और बॉक्स के राइट साइड में एक डाउन एरो, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. जब इस डाउन एरो को क्लिक करोगे आप तो एक बॉक्स पॉपअप होगा, पॉप डाउन होगा, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस रहेंगे और आपको वो ऑप्शंस चूज़ करने हैं. तो ये होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स यूज़ होता है कि वेबसाइट में यूज़र को कुछ ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करने हैं, तब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिटीज़ के नाम, ये जैसे मंथ का नाम, फिर ईयर चूज़ करवाना है, और कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है. सो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए टैग यूज़ होता है सेलेक्ट टैग. तो हम सेलेक्ट टैग से ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं. ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. ये ऑप्शंस डिफाइन किए जाते हैं ऑप्शन टैग से. सो लेट्स सी प्रैक्टिकली. So what we are going to do in our previous form, we are going to add one more input field, that is select your city, and this will be our drop down list box. So we'll provide just 3 or 4 city names. ये हम यहाँ पे डालेंगे सबमिट और रीसेट के ऊपर. ओके, तो इसके लिए आपको कोड में क्या चेंजेस करने हैं, लेट्स सी. तो अगेन 2 BR डालिए. ये हॉबीज़ का डेफिनेशन है. लिसनिंग टू म्यूज़िक चेकबॉक्स के बाद 2 BR डालिए. फिर उसके बाद डालिए सेलेक्ट योर सिटी. फिर आप डालोगे सेलेक्ट टैग, उसको एक नाम देंगे. जैसे यहाँ पे नाम दिया नेम इक्वल टू सिटी. फिर जितने भी ऑप्शंस आप उस लिस्ट में डालना चाहते हो तो वो ऑप्शन टैग से आप एक एक स्पेसिफाई कर दीजिए. यहाँ पे हम लोग 4 शहरों के नाम डालेंगे या 5 शहरों के नाम डालेंगे हम लोग. तो फॉर एवरी ऑप्शन, for every list of item you have to use this option tag and see that you close the option tag. तो ये हमारे 5 सिटी के नाम और नीचे हमने सेलेक्ट टैग को भी क्लोज कर दिया. तो ये पूरा सेक्शन उठाइए और अपने नोटपैड के कोड में डाल दीजिए. तो ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है फॉर्म 2 में. तो ओपन दैट. तो देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है. तो इसको ऐड कीजिए तो आपको वहाँ पे सिटी के नाम्स याद आ जाएंगे. अभी ऑलरेडी टेक्स्ट एरिया भी हम इसे सेव करते हैं. और अब हम ये फॉर्म 2 को ओपन करेंगे. ये फॉर्म 2 ओपन हो गया. देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आया सेलेक्ट योर सिटी. मैं उसको जूम करता हूँ थोड़ा. देखिए तो यहाँ पे ये 5 नाम आ गए. Again we'll enter our data. और यहाँ पे हम लोग सिटी. Now if using drop down list box by default you can choose only one option. हम मल्टीपल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं. उसके लिए एट्रीब्यूट है अलाउ करने के लिए. जैसे मैं यहाँ पे पुणे लिया और ये मैंने सबमिट कर दिया. So since we have added action attribute in that we have mentioned that exa.in response.php, तो आपको ये इसका जो भी फॉर्म डेटा सर्वर पे सबमिट हुआ उसके डिटेल्स आ गए. ओके, तो इस तरह हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्ट टैग. अगेन नेम इज़ देयर विच इज़ अ कॉमन एट्रीब्यूट फॉर एवरी इनपुट एलिमेंट, जो नाम डिफाइन करेगा आपके इनपुट फील्ड का. फिर यहाँ पे साइज़.
अभी यहाँ पे साइज़ का मतलब क्या है, ये डिफाइन करेगा कि आपको विजिबल ऑप्शंस कितने होने चाहिए। तो लेट्स सी, हम फॉर्म 2 में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ऑप्शन विजिबल होता है, तो ये मैं गया और यहाँ पे मैंने साइज़ इक्वल टू 3 डाल दिया। तो अब क्या होगा, आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है वो लिस्ट बॉक्स बन जाएगा और इसके अंदर 3 नाम बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले में नज़र आएंगे। तो लेट्स गो, वी रिफ्रेश द फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे अभी देखो क्या चेंजेस आ गया। आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स अभी बन गया लिस्ट बॉक्स, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस सामने दिख रहे हैं और ये आपको स्क्रॉल करके बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं और इसे आप चूज़ कर सकते हो। आप सिंगल ऑप्शन ही चूज़ कर सकते हो फिलहाल। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेक्स्ट इज मल्टीपल एट्रीब्यूट। जैसे मैंने बात की कि आप सिंगल ऑप्शन ही चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट बॉक्स है। आपको अगर मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ करवाना है तो आपको ये मल्टीपल एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा सेलेक्ट टैग के अंदर। ये एक बूलियन एट्रीब्यूट है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ आपको डालना है मल्टीपल। तो लेट्स गो बैक टू योर फॉर्म। तो साइज इक्वल टू 3 के बाद मैं लिखूँगा मल्टीपल। जब आप मल्टीपल एट्रीब्यूट डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स भी बन जाता है, ये याद रखिए। तो मल्टीपल डाल दिया, सेव किया और हम इसे अभी रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए मल्टीपल ऑप्शन चलता है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 सिटीज़ चूज़ करने वाला हूँ, मुंबई, फिर मैं नीचे जाके नागपुर। तो नागपुर चूज़ करने के लिए मैं अभी यहाँ कंट्रोल दबाऊँगा, ये कंट्रोल दबाया मैंने और नागपुर को क्लिक किया और फिर से स्क्रॉल कीजिए। देखिए दोनों चूज़ हो गए। चाहे तो आप थर्ड सिटी भी चूज़ कीजिए, नासिक, ये नासिक भी चूज़ किया मैंने। तो नाउ 3 cities are been choose. Let's see whether all the 3 goes to the server. I'll click on submit button. तो देखो यही गए नहीं सिटीज़, सिर्फ एक ही लास्ट सिटी का नाम गया। तो इसमें आपको और कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसके कारण ये तीनों नाम चले जाएंगे। तो आपको वैल्यू एट्रीब्यूट भी यूज़ करना पड़ेगा शायद से। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, मैं इसके शॉर्ट फॉर्म डालूँगा, ये ठाणे का शॉर्ट फॉर्म। तो ऑप्शन टैग में आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करें। अगर मल्टीपल ऑप्शंस है तो बाकी नाम्स फॉरवर्ड होने में सर्वर को आपको वैल्यू एट्रीब्यूट की ज़रूरत गिरेगी। तो मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो चाहे तो आप पूरा नाम लिख दीजिए। Okay, let's see. We have now changed something in the code, that we have also added value attribute under every option tag. So we'll again pass on multiple attributes. We have used the multiple attribute in select tag. सेव किया मैंने और ये मैंने फिर से बैक गया and we will reload the page. Again we'll enter the information. Let's see. तो ये मुंबई क्लिक किया मैंने, फिर से नासिक, फिर से नागपुर यूजिंग कंट्रोल की एंड विल सेंड द वैल्यूज़ टू द सर्वर। तो नहीं हुआ, तो इसका फाइंड आउट करता हूँ कि ये मेरे सर्वर पे ये सभी वैल्यूज़ क्यों नहीं जा रही है। ओके, तो एक्चुअली दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ सेंडिंग, बट इन माई स्क्रिप्ट आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टिंग ओनली जस्ट वन वैल्यू, सो आई नीड टू डू सम चेंजेस इन माई response.php। एक्चुअली ये मेरे सर्वर साइड स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है। ओके, सो मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करवाने के लिए आपको ये मल्टीपल ऑप्शन लेना है और अब वैल्यू भी यूज़ कीजिए ऑप्शन टैग में, मल्टीपल वैल्यूज़ को भेजना हो सर्वर पे। ओके, सो इन दिस वे वी यूज़ दिस select tag to create drop down list box and list box. Okay, then there are some other attributes which are also for the select tag, like required attribute is common for every, autofocus is common, disabled is also. So you can use these attributes in this way. So we have already learned autofocus, so it takes the focus to that particular control when your page loads. So let's move further. Now we'll move to
how to create multi-line text box. Till now we have created text box, we have created password box. All these are single line input fields. Now let's see how to create multi-line. For creating multi-line in HTML, text area tag is used. Now this text area tag can hold unlimited number of characters. You have to specify the size of the box by calls and rows attribute. तो ये दो एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ेंगे, कॉल्स और रोज, जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ को डिफाइन करेंगे. तो लेट्स सी प्रैक्टिकली. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में ये एक वेब पेज है, फॉर्म है इसके अंदर, और यहाँ ड्यूटीज़ का जो बॉक्स दिया है वो है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट से बना हुआ. ओके, तो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे. अभी जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो डिफाइन किया है, उसके बाद हम एक एड्रेस का बॉक्स डालेंगे. ओके, तो आपको क्या कोड डालना पड़ेगा. अगेन 2 BR डालिए स्पेस के लिए, 2 लाइन स्पेस के लिए, फिर एड्रेस लिखिए. अब ये जो बॉक्स हम लोग नीचे शिफ्ट करने वाले हैं, तो एड्रेस लिखने के बाद, लेबल लिखने के बाद और एक BR. फिर टेक्स्ट एरिया टैग को किस तरह लिखते हैं. देखिए टेक्स्ट एरिया, उसको नाम दो, उसके बाद रोज़ डिफाइन करो, यानी कितने लाइंस नीचे चाहिए आपको. तो यहाँ पे मैंने 5 दिए. फिर कॉलम्स डिफाइन करो. कॉलम्स आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे मैंने 31 दिया ताकि ऊपर वाले बॉक्स के साथ मैच हो. और फिर टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना है. तो याद रखिए ये टेक्स्ट एरिया कंटेनर टैग है. जिस तरह सेलेक्ट टैग भी हमारा कंटेनर टैग था, तो आपको क्लोज करना ज़रूरी है. इसके अंदर कुछ प्री रिटन इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए इस बॉक्स पे, तो ये टेक्स्ट एरिया टैग्स के बीच में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, वो प्री डिफाइंड आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो लेट्स पुट दिस कोड देयर. तो वी गो बैक टू आवर फॉर्म 2. तो क्या करना है आपको, 2 BR टैग पहले स्पेसेस के लिए, 2 लाइन स्पेस के लिए, फिर लिखना है एड्रेस, फिर एक कोलन, फिर एक और एक BR, फिर आपको लिखना है टेक्स्ट एरिया टैग, फिर नाम देना है उसको, फिर रोज डिफाइन करने, फिर कॉलम्स डिफाइन करने कॉल्स एट्रीब्यूट से, और फिर आपको टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी करना है. ओके, आपको कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ इन्फो देनी है यहाँ पे डाल सकते, नहीं तो आप प्लेस होल्डर से भी उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे मुझे यहाँ पे इन्फो डालना कि मुझे बताना है कि स्टार्ट योर एड्रेस विथ योर व्हाट इज से बिल्डिंग नेम, मुझे ऐसे बोलना है. तो मैं यहाँ पे डाल दिया. नहीं तो हम लोग इसे प्लेस होल्डर से भी डाल सकते हैं. यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डाल दीजिए प्लेस होल्डर इक्वल टू. तो ये मैंने सेव किया. तो ये प्री डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया. ये हम फॉर्म 2 को रीलोड करेंगे. तो ये आ गया एड्रेस. देखिए यहाँ पे ये एड्रेस लिख के आ गया अपने आप, सॉरी अपना इंस्ट्रक्शन लिख के आ गया, स्टार्ट योर एड्रेस विद बिल्डिंग नेम. तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट एरिया को बनाते हैं. तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे एंड विल सेंड टू द सर्वर. तो यहाँ पे मैं एड्रेस डालता हूँ. सिंपल एड्रेस. Okay, your address part is ready. I choose the gender and I choose 2 hobbies. Now I choose only one city name. Okay, and we'll submit it to the server. तो देखिए यहाँ पे ये आपका एड्रेस सर्वर के पास चला गया. ओके, so in this way we can create text area by using text area, which is a container tag. Text area requires rows and calls attributes for defining the size of the text area. Okay, next we'll see what are the different attributes of text area. Again, name we have seen to specify name, rows we have seen to specify the visible number of lines, calls to specify the width of the text area. तो रोज और कॉल से हम लोग साइज डिफाइन करते हैं. अभी ये CSS थ्रू होता है. नेक्स्ट है मैक्स लेंथ. हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि आपका एड्रेस कितना बड़ा हो सकता है. यानी यूज़र को फोर्स करेंगे कि आपका एड्रेस 100 कैरेक्टर्स या फिर
200 कैरेक्टर के अंदर ही डाले, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे max length equal to 100. If you write max length equal to 100, the user cannot enter more than 100 characters in the address. Okay. Next, another attributes of text area that will work, that is required. As you have seen what the required option does, then autofocus, it will get your text area in the focus as the page loads. Then we can have some default address and make it read only. Then placeholder is there to give a short hint that describe the value of a text area. Then disable is there to disable the text area. If you want, I can again practice this. So in text area, first we'll say required. So required, what it will do, it will, now what will do, I'll remove this start your own address. Okay, required से क्या होता है कि आप फोर्स कर रहे हो यूज़र को कि एड्रेस डालना कंपलसरी है. तो विल रीलोड. देखिए अभी मैं एड्रेस नहीं डालूंगा, यहाँ पे बाकी सब चूज़ कर दिया और सबमिट कर दूंगा. तो ये सबमिट हो रहा है. हमने रिक्वायर्ड देने के बावजूद. तो यहाँ पे कुछ तो भी एरर आ गया. ओके, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई. तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया को टोटली क्लोज कर देंगे. ये सामने क्या हुआ था, टेक्स्ट एरिया टैग्स के बीच में एक स्पेस आ गई थी, तो ये स्पेस फॉरवर्ड हो गई. तो ये देखिए अभी मैंने क्या किया, टेक्स्ट एरिया जहाँ ओपन हुआ उधर ही क्लोज कर दिया, मैंने बीच में स्पेस नहीं डाली. तो ये स्पेस भी उस बॉक्स में आ रही थी मेरे ख्याल से. तो विल रीलोड द पेज. लेट्स सी, वी हैव सेव्ड दिस, वी हैव टू सेव दिस. सेव किया मैंने. अगेन will not enter the address. Let's see our attribute, required attribute works or not. तो ये सबमिट दबाया. तो देखो अभी ये दिखा रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड. सो अंटिल यू पुट सम नंबर और यू पुट सम स्पेस इट विल एक्सेप्ट. तो अभी मैंने स्पेस डाल दी तो ये तभी एक्सेप्ट होता. तो आगे आपको ये भी फोर्स कर सकते हैं कि एड्रेस पे डेटा होना चाहिए, ना कि स्पेस. तो थ्रू रजिस्ट्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोग कर सकते हैं. ओके. तो देखिए कि टेक्स्ट एरिया और तुरंत टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना है. बीच में अगर स्पेस रखेंगे तो ये स्पेस एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी उस एड्रेस बॉक्स में. ओके. तो ये मैंने तुरंत उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया. तो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस रीड ओनली. ये सब पता है, चाहे तो हम और एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो हम अभी क्या करेंगे, ये रिक्वायर्ड निकाल के या इसको ऑटो फोकस दे देंगे. तो देखो यहाँ पे मैंने ऑटो फोकस लिख दिया. जो जैसे ही पेज लोड होगा तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ एड्रेस बॉक्स में यानी टेक्स्ट एरिया में आ गया. तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर. ओके, विल पुट प्लेस होल्डर. तो यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर देंगे. यूज़र को बोलेंगे कि स्टार्ट योर एड्रेस विथ बिल्डिंग नेम. ओके. तो ये हिंट दिया है कि एड्रेस को कैसे स्टार्ट करना है. ओके. ये सेव किया मैंने और विल रीलोड द पेज. तो देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर आ गया ग्रे कलर में. एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग इट विल गो. Okay, then disable, it will make the text area disable as you have seen in previous examples. Okay, so these are all the attributes of text area. You can copy them in your notebook. So now we'll see one form example. Number 2, please copy the entire code and practice it. तो ये एक फॉर्म है जहाँ पे हेडिंग है यूज़र इन्फो, उसके नीचे एक लाइन है HR टैग्स है, फिर नेम बॉक्स है, फिर पासवर्ड बॉक्स है, फिर पार्टी दिया डेमोक्रेट और रिपब्लिकन. ये 2 रेडियो बटन से बनेंगे. फिर ये बनेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. फिर ये बनेगा टेक्स्ट एरिया से कमेंट्स बॉक्स. फिर यहाँ पे सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन, ये एक चेक बॉक्स है. फिर नीचे क्लियर फॉर्म पहले आ रहा है, यानी रीसेट बटन पहले आ रहा है, बाद में सबमिट बटन आ रहा है. सबमिट बटन की वैल्यू हम लोग सेंड इन्फो लिखेंगे और रीसेट बटन की वैल्यू हम लोग क्लियर फॉर्म लिखेंगे. तो जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस कोड, एंटायर कोड आई एम गिविंग हियर. So start copying in your notebook.
तो ये हुआ यूज़र इन्फो और HR लाइन की डेफिनेशन। उसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ। तो फॉर्म में अब एक्शन इक्वल टू एट्रीब्यूट डाल दीजिए चेक करने के लिए कि आपका फॉर्म का डेटा सर्वर के पास जा रहा है कि नहीं। तो ये हुआ इनपुट फील्ड और पासवर्ड फील्ड का कोडिंग। देखिए पासवर्ड बॉक्स के लिए साइज़ हमने 15 दिया क्योंकि आपके फॉर्म के अंदर पासवर्ड बॉक्स की साइज़ कम है। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये 2 रेडियो बटन, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो देखिए बीच में 2 BR डालेंगे हम लोग और फिर पार्टी लिखने के बाद भी एक BR, क्योंकि ये जो रेडियो बटन नीचे डिस्प्लेड है तो इनको आपको वैल्यू भी देना है। कॉपी इन योर नोटबुक। नेक्स्ट हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स जहाँ पे स्टेट्स के नाम है। तो कुछ आप 3 या 4 स्टेट्स के नाम डाल दीजिए। ये एक्चुअली US स्टेट्स के नाम है। ये फॉर्म एग्जांपल वहाँ पे किस वहाँ का है। सो नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स बॉक्स जो कि टेक्स्ट एरिया से बना हुआ है। तो टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू कमेंट्स, फिर कॉल्स में मैंने 35 दिया है, रोज़ में 5 और तुरंत टेक्स्ट एरिया को वहाँ क्लोज कर दे। ये क्विट स्पाइंग ऑन में हम लोग ये नहीं डालने वाले, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो दिस इज़ क्लियर ना। नेक्स्ट इज हमारा एक नीचे चेक बॉक्स है, सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन। तो जो चेक बॉक्स है तो इसके सामने ही है, तो यहाँ पे BR नहीं आएगा सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन के बाद में। तो इसका नाम इन्फो दिया, इसकी वैल्यू हमने येस रखी क्योंकि ये सिर्फ एक टॉगल बॉक्स की तरह है, येस नो पता करने के लिए। एंड फाइनली योर रीसेट बटन। तो यू कैन सी द रीसेट बटन की वैल्यू है क्लियर फॉर्म, क्योंकि ये डिस्प्ले बटन के अंदर जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो क्लियर फॉर्म है। उसी तरह सबमिट बटन का जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो सेंड इन्फो है। तो ये हुआ बाकी बचा हुआ हिस्सा फॉर्म एग्जाम्पल नंबर 2। ये पूरा नोटबुक में कॉपी कीजिए फिर इसे प्रैक्टिस भी कीजिए। तो दिस इज फॉर्म एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ वी कम टू आवर होमवर्क नंबर 12। ये एक आपको वेब पेज बनाना है, इसको एक सूटेबल हेडिंग भी देनी है। सिंपल है। यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू एक बॉक्स है जहाँ पे नंबर्स की एंट्री होगी, फिर व्हाट इज़ अ जेंडर, मेल फीमेल, रेडियो बटन। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाना है जिसके अंदर पूछा गया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है ये। तो ये आप लोग जैसे SSC HSC ग्रेजुएशन मास्टर्स PhD ये ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर एक कमेंट बॉक्स बनाना है और एक सबमिट बटन है। यहाँ पे देखिए रीसेट बटन नहीं है और सबमिट बटन का डिस्प्ले टेक्स्ट है सबमिट क्वेश्चनरी। ओके, so this is your homework number 12. Please copy the form and the question in your notebook. नेक्स्ट वी हैव होमवर्क नंबर 13। ये कार डीलर का कार पिकर फॉर्म है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस के लिए बॉक्स है, फिर कलर चूज़ करने के लिए बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो आप 4 या 5 कलर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाइए, अपने हिसाब से कलर डालिए, कलर के नाम डालिए। फिर दूसरे ऑप्शन है 2 चेक बॉक्स दिए, सनरूफ, पावर विंडोज़, फिर डोर्स दिए 2 चाहिए कि 4, उसके लिए रेडियो बटन है। फिर जिप कोड दिया गया, ये उनके कार पिकर के डीलर्स के नज़दीक के लोकेशन है, ये आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से डालो।
चार पांच ऑप्शन, ये अभी देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स नहीं कि लिस्ट बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे साइज इक्वल टू 4 यूज़ करना है सेलेक्ट टैग के अंदर। ओके, फिर एक जिप कोड डालने के लिए एक छोटा बॉक्स दिया है और यहाँ पे सबमिट और रिसेट बटन है। तो ये हमारा होमवर्क नंबर 13। तो इसी के साथ हमारा ये फॉर्म वीडियो लेक्चर 2 ख़त्म हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन contact me through my email address or WhatsApp me. So with this we end our lecture. We'll see in our next video lecture with some more HTML form elements, and we'll see what are the new elements available in HTML5. Thank you very much.